Hello children, how are you all? Children, I hope you all are good watching the videos and completing your work. So children, I hope you must have completed the book exercise of previous chapter, that is chapter 4. So children, we had completed chapter 4 in the previous video and we had started chapter 5. So as we know children, in chapter 5 we are going to know about how to switch on or switch on for computer. So as I told you in our previous video children, before, as you know, we have studied about what is computer, different types of machine, man-made machine, natural things and man-made things. Then we also studied about uses of computer, the places where computers are found and different important parts of the computer. बट चिल्ड्रन इन दिस चैप्टर अभी जो भी हमें कंप्यूटर के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में या उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में जो भी हमें जानना था या पढ़ना था हमने पढ़ लिया. अब नेक्स्ट स्टेप इज टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर. सो चिल्ड्रन, बिफोर वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर we should also know how to switch on or switch off a computer. So children, here in this chapter, that is chapter 5, we are going to read about turning on or off a computer. So हमें कंप्यूटर पे कोई भी काम करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम कंप्यूटर को कैसे ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे, क्योंकि चिल्ड्रन इट इज़ नॉट as easy as switching on or switching off any other device which we use to make our work easy. So children, as we know, computer is a complex machine and that is why we should know. And the computer, if you want to switch off or switch on a computer, you follow certain steps or you go by step method to switch on or switch off a computer. So it is very important to know these methods, because as we know, computer is a delicate machine. If you don't use it properly or if you don't handle it properly, it may get you may face problem, or you have to again and again run to the हार्डवेयर शॉप, या फिर आपने जहाँ से खरीदा वहाँ जाके आपको उसमें करेक्शन मतलब ठीक कराना पड़ेगा, या हमेशा आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि आप कैसे कंप्यूटर को ऑन करोगे, ऑफ करोगे. तो चलो इस चैप्टर में लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू स्विच ऑन और स्विच ऑफ अ कंप्यूटर. सो चिल्ड्रन, in this chapter we are going to cover the topics, that is step to turn on the computer and steps to turn off a computer. So in order to switch on or switch off, we should follow certain steps. So there are more than one steps in order to switch on or switch off a computer. So these steps has to be followed in one by one, and we should know which step should be first and then the next one. तो इसे जानने के लिए we are going to read chapter 5, that is how in this chapter we are going to learn how to switch on or switch off a computer. So children, once again we meet Lappy. Hello kids, hope you are enjoying learning computer. Computer is a delicate machine. We should operate it carefully. As I told you, as it is a delicate machine, it has to be operated very carefully. हमें इसे यूज़ करते समय, हमें इसे ऑपरेट करते समय बहुत केयरफुल होना पड़ेगा और बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी, यानी हमें इसे बहुत ही प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा. Let us learn how. Let us see what are these steps, how we can use it properly. So while learning, the first step you should know is how to on or off a computer properly. तो उस पर काम करने से पहले सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि इसे किस तरह से कायदे से ऑपरेट कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं. अब by now you know that a computer is a man-made machine. So children, with this sentence I would like to tell you that in the previous chapter or in the first chapter itself we have studied about different types of machine. So children, what are machine? We came to know that a machine, the word machine, in the first chapter itself we studied about the word machine. Machine means, machine का मतलब device भी होता है. Machine means any object which makes our work easy. कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे वर्क को इजी बनाता है. तो what are these machines children? These are man made objects.
ये मैन मेड डिवाइस होते हैं जिनको मैन ने बनाया है। तो हमने अपने काम करने को आसान बनाने के लिए जो डिवाइस बनाया है उसे हम मैन मेड डिवाइस कहेंगे, क्योंकि इट इज मेड बाय मैन। सो मैन हैज मेड सेवरल मशीन्स टू मेक his or her own life कंफर्टेबल और फास्ट। और यहाँ पे चिल्ड्रन जितनी भी मशीन्स हैं हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, वो किसी न किसी तरह से हमारे काम को आसान करते हैं और हमारे काम को फास्ट करते हैं, क्योंकि और कंप्यूटर इज वन ऑफ द मशीन विच मेक्स आवर वर्क faster and easier, and the work done by the computer is always accurate, it never makes mistakes, and speed is also very fast, it saves our time, so and it can do lot of things at a time. Other than that children, the information or the output which we get from the computer is also stored in the computer। मतलब हम जो भी हमें उसका फ़ायदा है या इन्फॉर्मेशन हमसे मिलता है, हमें उसे कहीं और रखने की ज़रूरत नहीं, हम इजीली उसे कंप्यूटर में सेव करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टोरेज की भी प्रॉब्लम नहीं है, काम भी हो रहा है और स्टोरेज भी है। सो इन दिस वे कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मशीन एंड इट मेक्स आर वर्क ईजी इन सेवरल वेज। वो बहुत सारे तरीके से काम करता है, बहुत सारे काम करता है, इसलिए बहुत सारे तरीके से हमारे काम को आसान बनाता है। तो इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड चिल्ड्रन कि कंप्यूटर इज अ मैन मेड मशीन बट इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि मशीन, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मशीन। मशीन मीन्स मैन मेड। Man made, any machine which we talk about is made by man। ये सारे मशीन किसके द्वारा बनाए गए हैं? ये सारे मशीन मैन द्वारा गए हैं। मैन हैज मेड दीज मशीन्स। उसके बाद ये जो मैन मेड मशीन है, जिस मैन मेड मशीन की बात हम आज करने जा रहे हैं, दैट इज कंप्यूटर। COMPUTER, कंप्यूटर। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी शुड नो इज दैट चिल्ड्रन, कंप्यूटर each and every machine run by one or the other thing, मतलब किसी न किसी चीज़ से मशीन्स चलती है और ज़्यादातर मशीन्स इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो हियर चिल्ड्रन मोस्ट ऑफ द मशीन रन्स यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे रन्स विथ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, दैट इज वाई these are called, इसलिए हम इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन। द वन विच रन्स यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। जो भी मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब यहाँ पे इट बिकम्स इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। सो इजंट इट चिल्ड्रन, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सो नाउ द लापी सेज yes, computer is an electronic machine. Why electronic machine? The word electronic has come from the electricity. This word has come from electricity. Electricity is a fuel using which computer runs, क्योंकि हर मशीन को चलने के लिए एक फ्यूल चाहिए होता है। यहाँ पे कंप्यूटर को रन करने के लिए we have a fuel that is called electricity। अब कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, इसलिए हमने उसको एक नाम दिया है, that is electronic। ये है इलेक्ट्रॉनिक। सो ये कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर इज ऑल्सो अ मैन मेड मशीन। तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिला करके वी कैन से कंप्यूटर इज अ मशीन मेड बाय मैन and it runs using the electricity, so it is electronic machine. So here we can say computer is an electronic machine. तो अभी तक तो हमको बिल्कुल पता है कि the definition of the computer is that computer is an electronic machine. Now अब हमें इतनी चीज़ें पता चल गई, अब हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे how to turn on a computer. So the first topic of this chapter is children how to turn on a computer, यानी turning on अ कंप्यूटर। सबसे पहले हम टर्निंग ऑन सीखेंगे, देन ओनली विल लर्न हाउ टू स्विच ऑफ। एक बार हम कंप्यूटर को चला लेंगे फिर ही बंद करेंगे, इसलिए पहले हम सीखेंगे हाउ टू टर्न ऑन अ कंप्यूटर। बिफोर दैट, कंप्यूटर इज अ मशीन। मशीन इज समथिंग विच मेक्स आवर वर्क ईजी। मशीन इज मेड बाय मैन, सो इट इज कॉल्ड मैन मेड मशीन। मशीन एक मैनुअल मशीन है, और मशीन में भी हमने दो तरह की मशीन्स पढ़ा था, एक मैनुअल एंड द अदर वन इज इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे मैनुअल मशीन भी होती है जिसमें किसी भी फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो मैन के पार्ट से चलती है, या हम अपने हाथ से चला करके या पैरों से चला करके उसे चलाते हैं, तो उसे हम मैनुअल मशीन कहते हैं। वहीं पे ऑन द अदर हैंड वी हैव
अनदर टाइप ऑफ मशीन विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है the one which runs using the electricity। तो यहाँ पे कंप्यूटर is an electronic machine because it runs on electricity। So I hope children this much is clear with you। Now let us start the chapter। तो इतना हमने पहले पढ़ा था, एक बार हमने इसको रिवाइज कर लिया है। अब हमारा टॉपिक है हाउ टू स्विच ऑन अ कंप्यूटर। हाउ टू स्विच ऑन अ कंप्यूटर। तो टर्न ऑन अ कंप्यूटर, our today's topic is how to turn on a computer। हम कंप्यूटर को कैसे टर्न ऑन करेंगे। तो दिस इज आवर टॉपिक इज टर्निंग ऑन अ कंप्यूटर शुड बी TRU करना है ना, तो टर्निंग ऑन अ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को कैसे चलाएंगे, टर्निंग ऑन अ कंप्यूटर मीन्स कैसे चलाएंगे। तो हियर चिल्ड्रन यू कैन सी फॉर टर्निंग ऑन अ कंप्यूटर वी फॉलो सेवरल स्टेप्स। वी गो बाई स्टेप मेथड। यहाँ पे हम कंप्यूटर को ऑन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो करते हैं। और सबसे पहले कौन सा स्टेप है, उसके बाद कौन सा, दिस वी विल बी लर्निंग हियर टुडे। सो चिल्ड्रन देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, मेथड यानी प्रोसीजर। यहाँ पे द फर्स्ट लाइन इज देयर, THERE, देयर इज अ स्टेप by step, STEP, step by step procedure, 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 step by step procedure that, THAT, that YOU, that you should, SHOULD, should follow to turn, TURN, turn on a COMPUTER, computer। अब चिल्ड्रन, अब लेट अस अंडरस्टैंड देयर आर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। स्टेप बाय स्टेप का मतलब होता है एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, फिर दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो सारे एक के बाद एक फॉलो किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे स्टेप बाय स्टेप मेथड। सबसे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। वी कैन नॉट फॉलो लास्ट स्टेप एट द फर्स्ट वन और फर्स्ट वन एट द लास्ट। तो इनका प्रोसीजर है या इनका तरीका है कि हम फर्स्ट जब करना है तो फर्स्ट ही करेंगे, सेकेंड में सेकेंड ही करेंगे, थर्ड में थर्ड ही करेंगे। तो व्हाट आर दीज स्टेप्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर और लर्न हियर। सो प्रोसीजर इज द मेथड यानी तरीका, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप का मतलब है एक के बाद एक जो भी हम प्रोसीजर या जो भी हम स्टेप्स फॉलो करेंगे उसे हम स्टेप बाय स्टेप मेथड कहते हैं। हम पहले को लास्ट में नहीं कर सकते या लास्ट वाले को पहले नहीं कर सकते। तो और इसको फॉलो करने को हम प्रोसीजर करेंगे, तरीका यानी मेथड यानी प्रोसीजर। दैट यू शुड फॉलो, जो हमें फॉलो करना है यानी अपनाना है। टू टर्न ऑन अ कंप्यूटर, इन ऑर्डर टू टर्न ऑन द कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर को टर्न ऑन करना चाहते हो तो यू हैव टू फॉलो स्टेप बाय स्टेप मेथड। आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो करना होगा। दैट दो स्टेप्स वी आर गोइंग टू रीड एंड अंडरस्टैंड हियर। सो चिल्ड्रन, this is the beginning कि in order to switch on a computer you should follow step by step method और procedure का मतलब होता है तरीका। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास अब now we are going to know about the step by step method। फर्स्ट वाला स्टेप जो हमारा है उसमें you can see there is a switch board। ये है स्विच बोर्ड, ठीक है, इसको हम स्विच बोर्ड कहते हैं। आप देख सकते हो आप सभी के घर में स्विच बोर्ड होगा और इसके साथ ये पावर है। एक्चुअली ये पावर वाला मतलब कि कुछ ऐसे डिवाइसेस हमारे घर में जो बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन जिनका होता है, तो उसमें हम पावर स्विच, नॉर्मल स्विच बोर्ड नहीं होता है, पावर स्विच लगाते हैं। तो इसमें यहाँ पे बड़ा सा एक स्विच के लिए पॉइंट होता है। यहाँ पे हमारे पास आप अपने उसमें भी देख सकते हो ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे एक बड़ा सा होता है। अब इसमें हम अपने स्विच को प्लग इन करते हैं। यहाँ पे हम अपने स्विच को इस तरह से प्लग इन करते हैं। तो कुछ ट्रायंगल शेप का स्विच होता है जिसे हम प्लग इन करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लग इन किया स्विच बोर्ड में, स्विच को प्लग इन किया। अब यहाँ पे ये वायर है, वायर जो है कंप्यूटर से कनेक्टेड है। तो ये है हमारा स्विच
बोर्ड का पावर पॉइंट, इसको हम पावर पॉइंट कहते हैं, वी कॉल इट एज पावर पॉइंट, इसको हम पावर पॉइंट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके बगल में इसका स्विच होता है, इसके बगल में इसका स्विच होता है और इस स्विच के अंदर यहाँ पे एक इस तरह की लाइन रहती है, यानी कि ऑन ऑफ करने के लिए एक लाइन होती है। तो दिस इज स्विच। तो यहाँ पे स्विच बोर्ड है, यानी प्लग इन करेंगे हम। सबसे फर्स्ट स्टेप में वी विल प्लग इन द, हम इलेक्ट्रिक बोर्ड पे या स्विच बोर्ड पे जो प्लग है कंप्यूटर का उसे प्लग इन करेंगे। तो पावर पॉइंट हम उसमें इसको प्लग इन करेंगे सो दैट द कंप्यूटर गेट्स इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सके, इसलिए हम सबसे पहले उसके प्लग को प्लग इन करेंगे। यहाँ पे तो फर्स्ट स्टेप चिल्ड्रन, दिस इज FSTEP 1, स्टेप 1। स्टेप 1 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, टर्न ऑन द इलेक्ट्रॉनिक स्विच, प्लग इन करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक स्विच को टर्न ऑन द इलेक्ट्रॉनिक स्विच, स्विच, टर्न ऑन द इलेक्ट्रॉनिक स्विच। तो यहाँ पे ये स्विच है, इसको हम स्विच कहेंगे। ये प्लग इन कर दिया, प्लग इन पहले से भी हो सकता है, इसलिए सीधा फर्स्ट स्टेप में टर्न ऑन दिस स्विच, इस स्विच को हम टर्न ऑन करेंगे। उसके बाद टर्न ऑन करने के बाद कहाँ से टर्न ऑन करेंगे, फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बोर्ड। तो दिस इज इलेक्ट्रिक बोर्ड, ELEC, इलेक्ट्रिक, PRIC, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है, BOARD। टर्न ऑन द इलेक्ट्रॉनिक स्विच फ्रॉम, FROM, फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बोर्ड, BOARD, बोर्ड। अब चिल्ड्रन ये पूरा जो है इसको हम इलेक्ट्रिक बोर्ड कहते हैं, ये बिजली का बोर्ड हिंदी में जिसे हम कहते हैं, इसे हम इलेक्ट्रिक बोर्ड कहेंगे। दिस इज इलेक्ट्रिक बोर्ड। अब हमने सबसे पहले प्लग इन किया, क्या प्लग इन किया हमने, जो प्लग था कंप्यूटर का उसे हमने प्लग इन किया। प्लग इन करने के बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने स्विच को ऑन किया। सो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इन द फर्स्ट स्टेप टर्न ऑन द इलेक्ट्रॉनिक स्विच। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं या फिर उसे कट करते हैं। अगर हमने ऑन किया तो इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो थ्रू द वायर, यहाँ पे प्लग इन तो ये किया हुआ है। अब अगर ये ऑन है तो इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो थ्रू द वायर, दिस वायर इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। ये वायर किससे कनेक्टेड है, कंप्यूटर से कनेक्टेड है, ये वायर कंप्यूटर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये वायर है जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड है, इस कंप्यूटर से हमने इसको कनेक्ट किया है। अब यहाँ पे हम इस कंप्यूटर के वायर को प्लग इन करेंगे और ये वायर कहाँ लगा होता है, ये वायर हमारे CPU में लगा होता है, ठीक है। जो साइड में हमारे पास एक CPU होता है उसमें ये वायर लगा होता है। तो ये CPU है, CPU में वायर लगा होता है। दिस इज कंप्यूटर, ये हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर, ये है CPU, ये है मॉनिटर और फिर उसके बाद यहाँ पे कीबोर्ड भी मिलेगा आपको। ये कीबोर्ड है क्योंकि ये सारे तो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है कंप्यूटर के, ये तो होना ही होना है। तो दिस इज कीबोर्ड, और ये सभी किससे कनेक्टेड है, ये सभी तुम्हारे, ये कीबोर्ड है और यहाँ पे ये माउस है, ये है माउस कॉर्डलेस भी हो सकता है और माउस, चलो माउस को हम यहाँ बनाते हैं सो दैट इट इज इजियर टू कनेक्ट विथ द CPU। यहाँ पे ये सारी चीजें CPU से जुड़ी हुई है। सो चिल्ड्रन, फर्स्ट स्टेप टू स्विच ऑन द कंप्यूटर इज टू प्लग इन द वायर इन द इलेक्ट्रिक बोर्ड। ये पूरा इलेक्ट्रिक बोर्ड है जिसमें एक प्लग पॉइंट होता है, दूसरा इलेक्ट्रिक स्विच होता है। अगर हमें कंप्यूटर फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले प्लग इन करेंगे, प्लग इन किया है तो हम स्विच ऑन करेंगे।
अब जब हम स्विच ऑन करेंगे द इलेक्ट्रिसिटी विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द बोर्ड टू द कंप्यूटर। अब इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगा, अब इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर को मिलने लगी नाउ। सो यहाँ पे द वर्ड्स यूज्ड इज टर्न ऑन द इलेक्ट्रॉनिक स्विच। ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, इलेक्ट्रिसिटी का स्विच है, तो इसे इसलिए इलेक्ट्रॉनिक स्विच कहेंगे। हमने इसको टर्न ऑन कर दिया, मतलब स्विच ऑन कर दिया। अब स्विच ऑन करने के बाद कहाँ से ऑन किया है? इलेक्ट्रिक बोर्ड से, क्योंकि ये स्विच इलेक्ट्रिक बोर्ड पे होता है। हमने सबसे पहले स्टेप में इसको हमने स्विच ऑन कर दिया है। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप, अब चिल्ड्रन देयर इज अनदर डिवाइस विच इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। अब ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस आप देख सकते हो, आपकी बुक में भी बना हुआ है, कुछ ऐसा डिवाइस है, आप देख सकते हो। और ठीक है, ऐसा डिवाइस है ये, ठीक है, ये कुछ इस तरह का डिवाइस है, ठीक है। अब ये है, इसको हम कहते हैं, यहाँ पे एक स्विच का बटन है, यहाँ पे एक ऑन ऑफ का बटन, इसमें भी एक बटन होता है, यहाँ पे एक स्विच होता है, और इसको हम कहते हैं, वी कॉल इट एज यूपीएस, हम इसको यूपीएस कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द यूपीएस, ये भी कनेक्टेड है यूपीएस से, इसको हम यूपीएस कहते हैं। क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज यूपीएस, हम इसको यूपीएस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक स्विच है, इसको हम यूपीएस कहते हैं। यूपीएस का मतलब क्या होता है? यूपीएस का मतलब होता है सेकेंड स्टेप 2। स्टेप 2 में आप देख सकते हो, इन स्टेप 2 में वी आर गोइंग टू स्विच ऑन द यूपीएस। हम यहाँ पे यूपीएस को स्विच ऑन कर रहे हैं। ये यूपीएस है, आप देख सकते हो कि ये यूपीएस है, थोड़ा सा इसको, ठीक है, ये आपका यूपीएस है, ठीक है। अब यूपीएस को हम स्विच ऑन करेंगे। जब हम स्विच यूपीएस को स्विच ऑन क्यों करेंगे? व्हाट इज दिस यूपीएस चिल्ड्रन? सेकंड स्टेप में यू आर गोइंग टू स्विच ऑन द यूपीएस। टर्न ऑन द, यू विल राइट हियर, टर्न ऑन द यूपीएस, इसको हम यूपीएस कहते हैं। टर्न ऑन द यूपीएस, इसका मतलब होता है, यूपीएस मीन्स अनइंटरप्टेड, uninterrupted power, 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 SUPPLY, power supply। turn on the UPS यानी कि uninterrupted power supply। अब यहाँ पे चिल्ड्रन, एज यू कैन सी हियर, फर्स्ट स्टेप में हमने स्विच बोर्ड को ऑन कर से प्लग इन किया और स्विच को ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग इनटू द कंप्यूटर। अब द क्वेश्चन, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज द नीड ऑफ यूपीएस वंस यू आर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द स्विच बोर्ड। तो व्हाई डू वी नीड यूपीएस? यूपीएस का क्या पर्पस है? यूपीएस के बारे में तो आपने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, बट चिल्ड्रन इट इज अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। इसके बिना भी हम काम हमारा चल जाएगा, लेकिन जब लाइट जाएगी तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। सपोज यू आर डूइंग सम इम्पॉर्टेंट वर्क एंड इन बिटवीन द पावर गोज ऑफ और द सप्लाई गोज ऑफ, योर वर्क विल stop there, or in case you have not saved the work, it will be deleted, पूरा गायब हो जाएगा। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपने सेव किया है तो जितना किया है उतना रहेगा, आपका काम रुक जाएगा। अगर आपने सेव नहीं किया है तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, आपको उस काम को दोबारा करना पड़ेगा। सोचो, आप 2 घंटा बैठ के काम करते हो, एकदम से लाइट चली जाती है तो आपका पूरा 2 घंटे का काम किया हुआ वेस्ट चला जाता है। तो इज इट गुड चिल्ड्रन? नहीं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे वी हैव अनदर डिवाइस विच इज अटैच्ड टू द कंप्यूटर फॉर द टाइम व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। इसका काम है, जैसे आपके घर में बैटरी होता है, इन्वर्टर होता है, आपके घर की लाइट चली जाती है तो आप गर्मी में आपको ना रहना पड़े, इसलिए आप अपने घर में बैटरी लगवाते हो, इन्वर्टर बैटरी लगवाते हो। इन्वर्टर का काम होता है लाइट पावर्स कट ऑफ होने पे टू गिव light to your house, provide electricity to the
all the electrical appliances at the time of कट ऑफ, पावर कट ऑफ। तो जब लाइट नहीं है उस समय आपके घर में लाइट रहे, आपके पंखे चलते रहें, आपके लाइफ मतलब डिस्टर्ब ना हो, आपको गर्मी में ना रहना पड़े, इसलिए अपने घर में आप इन्वर्टर्स लगवाते हो। उसी तरह से चिल्ड्रन, हियर वी हैव अ बैटरी, दिस इज कॉल्ड यूपीएस, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, बिकॉज if your computer is connected to the UPS, if your computer has UPS connection, तो लाइट जाने पर भी आपका काम नहीं रुकेगा, you can continue with your work। तो ये इसका मतलब है uninterrupted power supply। U का मतलब है, इसका नाम है UPS। U means uninterrupted, बिना रुके, uninterrupted। P का मतलब है पावर, S का मतलब है सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मतलब लाइट नहीं है फिर भी आपका काम ना रुके, आपके कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे और आपका कंप्यूटर काम करता रहे, इसलिए वी ऑल्सो कनेक्ट द कंप्यूटर विद द यूपीएस। तो एक बार हम सबसे पहले स्टेप में स्विच ऑन करेंगे, पावर सप्लाई करेंगे, उसके बाद हम यूपीएस ऑन करेंगे ताकि बीच में लाइट ना चली जाए, और उसके बाद थर्ड स्टेप में वी विल go for switching on the CPU. Another important part of the computer is CPU, because all the work are controlled by the CPU. पूरे कंप्यूटर को CPU ही कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो CPU है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होने के बाद तो हम वी विल स्विच ऑन द CPU। नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में आपने देखा दिस इज योर CPU, यहाँ पे CPU है, मैंने आपको छोटा सा CPU बना के बताया, ये CPU है। नेक्स्ट स्टेप में आपको स्टेप थ्री में यू विल स्विच ऑन द ऑन ऑफ बटन इन द CPU। जो भी CPU में ऑन ऑफ बटन होता है उसे आप ऑन करेंगे, स्विच ऑन SWITCH, स्विच ON ऑन द पावर POWER पावर बटन BUTTON पावर button of the central 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 processing, या हम अभी यहाँ पे CPU लिखते हैं, CPU। अब चलिए फर्स्ट स्टेप में वी हैव टर्न ऑन द इलेक्ट्रॉनिक स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, हमने कर दिया, हमने स्विच ऑन कर दिया। सेकेंड स्टेप में हमने ये भी ऑन कर दिया, ये भी ऑन हो गया। थर्ड स्टेप में देयर इज अ बटन, दिस बटन, जैसा कि मैंने यहाँ पे गोल बताया है, दिस इज ऑन ऑफ बटन, एक रेड कलर का बटन होता है विच कैन बी स्विच्ड ऑन और स्विच ऑफ भी किया जा सकता है। तो स्विच ऑन द पावर बटन, दिस इज पावर बटन, ये जो CPU है ये CPU का पावर बटन है, इसको हम कहते हैं पावर बटन। दिस इज कॉल्ड एज पावर POWER पावर BUTTON बटन, ये है पावर बटन। दिस पावर बटन हैज टू बी स्विच्ड ऑन। जब हम उसको ऑन करेंगे तो आपका CPU ऑन हो जाता है और उसमें लाइट जलने लगती है, वो इंडिकेटर है, इट इज टू शो दैट CPU इज एक्टिव, यानी वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो पावर बटन है उसको हम ऑन करेंगे, पावर बटन को ऑन करने के बाद आपका CPU ऑन हो जाएगा। तो दीज आर द first 3 steps which we should follow while switching on the computer. So children, as here we are coming to the end of this video, let us revise what we have studied till now. So here children, we were learning about how to turn on a computer, because before doing any work on the computer we should know how to switch on or switch off a computer, क्योंकि कंप्यूटर को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना इतना आसान नहीं होता। हमने जैसा कि हमने जाना कि कंप्यूटर इज अ डेलिकेट मशीन, इट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ एंड इट शुड बी ऑपरेटेड केयरफुली। उसका हमें ध्यान देना होगा, हमें उसको ऑपरेट करते समय उसका केयर करना पड़ेगा, नहीं तो वो ख़राब हो सकता है, हमारे लिए परेशानी हो सकती है। तो ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा, तो इसलिए वी शुड फॉलो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर का मतलब होता है मेथड या तरीका टू स्विच ऑन द कंप्यूटर। तो फर्स्ट सबसे पहले स्टेप 1 में टर्न ऑन द इलेक्ट्रॉनिक स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बोर्ड। सबसे पहला हमारा काम है इलेक्ट्रॉनिक स्विच से, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से यानी कि स्विच बोर्ड से हम इस
स्विच को ऑन करेंगे सो दैट द कंप्यूटर गेट्स इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उसको पावर सप्लाई मिल जाए। उसके बाद हम यूपीएस को ऑन करेंगे सो दैट इन केस लाइट चली जाती है तो योर कंप्यूटर डजंट गेट स्विच्ड ऑफ। थर्डली यू विल स्विच ऑन द पावर बटन ऑफ द सीपीयू। तो अभी तक हमने स्विच ऑन किया प्लग से, उसके बाद हमने आपके यूपीएस को ऑन किया, उसके बाद सीपीयू को ऑन कर दिया। उसके बाद चिल्ड्रन, एज वी आर गोइंग द टाइम, we have come to the end of this video. Children, we will discuss the remaining points in our next video. Till then children, go through the video, try to understand whatever we have done in this video. We will meet once again, and once you understand these points, it will be easier for you to understand the remaining points. So children, thank you, and we will meet once again in our next video. Till then, thank you.